Hello learners, welcome to Computer Pathshala. In this presentation, we will cover important multiple choice questions that are frequently asked in exams. So let's begin and test our knowledge together. So first question, a computer is a dash machine. So these are the options: fuel based, mechanical, electronic and human power based. Think about the answer. So the correct answer is electronic. Now let's move to the next question. Which of the following is not a task of a computer? That means you have to tell which is not a task, जो computer नहीं करता है. First is playing movies and music. Second, playing games, cooking food and solving arithmetic calculations. So इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्क कंप्यूटर नहीं परफॉर्म करता है. So think for a moment and tell me the answer. So the correct answer is cooking food. Next question, which of the following is true for a machine? Options are machines work fast, machines save our time, machines cannot work on their own, and all of the above. Think for a moment and then check the answer. So the correct answer is all of the above. Let's move to the next question. Which of the following is fuel-based machine? Options are bicycle, computer, car, and none of the above. The correct answer is car. Now again move to the next question. Which of the following is not true for a computer? Options: first, it makes many mistakes, it never gets tired, it is a smart machine, and can store many things like words, pictures, etc. So इसमें से हमको बताना है कि कौन सा सेंटेंस कंप्यूटर के लिए करेक्ट नहीं है. So the correct answer is it makes many mistakes. Now let's move on to the next question. Which of the following is not a part of computer system? Again the options are monitor, keyboard, CPU and computer table. So we have to tell which is not a part of the computer system. So monitor is also a part, keyboard is a part, CPU is a part. So what will be the answer? Computer table. Next question. CPU is known as dash of computer system. So we have to tell कि CPU कंप्यूटर सिस्टम का क्या है, क्या बोलते हैं उसको. हार्ट, लीवर, बैकबोन और ब्रेन. सो आई थिंक ये आंसर तो सबने गेस कर लिया होगा. यस, CPU is the brain of the computer. Next is CPU stands for. Here we have to tell about the full form of the CPU. So options are center person unit, correction personal unit, central processing unit, and none of the above. Now let's see the correct answer, that is central processing unit. The next question, if you wish to type your name in computer, you will need dash. अगर हमें कंप्यूटर पे अपना नेम टाइप करना है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? माउस, कीबोर्ड, पेन or none of the above? Then think. Let me tell you, the answer is keyboard. Very good. The term click is associated with. That means if we are thinking about this term, अगर हम इस टर्म के बारे में सोचें क्लिक, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? हम किस चीज से क्लिक करते हैं? माउस, कीबोर्ड,
मॉनिटर या नन ऑफ द अबव? सो आई थिंक ये सबने गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर इज माउस. नेक्स्ट इज द टर्म न्यूमरिक कीपैड इज एसोसिएटेड विद. अगर हम न्यूमरिक पैड की बात करते हैं, हमने कीबोर्ड में भी पढ़ा था कि न्यूमरिक कीपैड कहाँ पर होता है, राइट साइड में होता है कीबोर्ड के. तो इसी से आप लोगों को आंसर गेस हो गया होगा. द आंसर इज कीबोर्ड. नेक्स्ट इज द टर्म हार्ड कॉपी इज एसोसिएटेड विद. हार्ड कॉपी की अगर बात करते हैं, दो टाइप की कॉपीज होती हैं अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी. तो सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? विच वी आर सीइंग ऑन द मॉनिटर, जो हमें मॉनिटर पे दिखाई देती है लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी इज एसोसिएटेड विद प्रिंटर. यस, वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीबोर्ड की टाइप? इनमें से कौन सी की कीबोर्ड टाइप की नहीं है, कीबोर्ड की नहीं है? नंबर की, अल्फाबेट की, स्पेस बार की एंड सीरियल की. तो जिसने मेरा वो कीबोर्ड वाला वीडियो देखा होगा वो फटाफट से गेस कर लेगी. यस, द आंसर इज सीरियल की. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सम symbols are there. See, some symbols are there. I am asking you about these symbols are the example of which type of key. Means इन symbols को कौन सी की बोलते हैं? स्पेशल सिंबल की, अल्फाबेट की, स्पेस बार की और बैक स्पेस की. So the correct answer is special symbol key. Next is, what is the function of space bar key? Space bar key, as we have discussed in the last video, that space bar key is the longest key of the keyboard. But वो use किस लिए होती है? किस किस को याद है? ऑप्शंस मैं दे रही हूँ. टू कैपिटलाइज द लेटर्स, टू प्रिंट स्पेशल कैरेक्टर्स, टू टाइप द नंबर्स एंड टू ऐड ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड्स और नंबर्स. थिंक अबाउट द आंसर. Yes, the correct answer is to add blank spaces between words or numbers. Next is, which of the following is a physical device of a computer? Physical device that we can touch. Okay. So options are software, hardware, application and program. So the correct answer is hardware, because hardware and software two parts are there जिससे मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनता है. तो सॉफ्टवेयर हम किसको बोलते हैं? द थिंग विच वी आर वॉचिंग इनसाइड द कंप्यूटर, विच वी आर नॉट एबल टू टच, जिस पे हम वर्क करते हैं, वो सॉफ्टवेयर है. हार्डवेयर क्या है? जिसको हम टच कर सकते हैं. द फिजिकल डिवाइसेस जस्ट लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, दीज आर द external devices which we can touch, but the applications on which we are working, जिन पे हम वर्क करते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो फिजिकल डिवाइस का आंसर क्या होगा? हार्डवेयर. Let's move on to the next question. Which of the following is not a hardware device? Mouse, keyboard, antivirus and monitor. तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया है कि हार्डवेयर डिवाइस कौन से हैं. तो मुझे लगता है आप लोगों ने फटाफट गेस कर लिया होगा हार्डवेयर डिवाइस कौन सा नहीं है, एंड दैट इज एंटीवायरस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एंड मॉनिटर. So input device होते क्या है? Input device means in means if we want to enter something inside the computer. अगर हमें कंप्यूटर में कोई डेटा भेजना है तो किसके थ्रू भेजते हैं? किसके थ्रू ओपन करते हैं? किसके थ्रू सेलेक्ट करते हैं? माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, राइट, स्कैनर के थ्रू. लेकिन हमें दिखाई किस पर देता है? क्या मॉनिटर के थ्रू हम कुछ भेज सकते हैं? नो. मॉनिटर से तो हम सिर्फ देख सकते हैं. मॉनिटर एक डिस्प्ले का काम करता है. दैट मीन्स वॉट एवर वी आर एंटरिंग फ्रॉम द इनपुट डिवाइस दैट हैज बीन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. सो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज मॉनिटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? अभी हमने इनपुट डिवाइस की बात करी. नेक्स्ट इज आउटपुट. आउटपुट मीन्स कौन कौन से पार्ट्स कंप्यूटर के हमको आउटपुट देते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हैं वो? स्पीकर, प्रिंटर,
माउस एंड मॉनिटर। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया इनपुट डिवाइस कौन से हैं। मॉनिटर का हमने डिस्कस किया, वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्योंकि वो हमें हार्ड कॉपी देता है, वो हमें कुछ दे रहा है हार्ड कॉपी दैट वी कैन टच, सो दैट इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, स्पीकर क्या होते हैं? जिनसे हम सुनते हैं, ठीक है, हम डेटा कुछ नहीं डाल रहे हैं स्पीकर में, स्पीकर हेल्प्स कर रहा है हमें सुनने में, तो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। सो दैट मीन्स mouse is a correct answer. Mouse is the only which is not a output device because it's an input device. नेक्स्ट, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने पूछा था, जिसको नहीं आया था आई थिंक अब आ गया होगा, अब याद है? वेरी गुड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करना भी जरूरी है। नेक्स्ट इज फ्लैट बेड, शीट फेड, handheld are types of. So what are these are? These are the types of scanner, digital camera, monitor, software. These are the types of scanner. So correct answer is scanner. Next is main function of CPU is to process. Main function क्या होता है CPU का? What is the main function? जैसे कि हमें पता है that CPU is a central processing unit. We all know that CPU is the central processing unit. ठीक है, so that means, and the question is main function of the CPU. तो options हैं output, data input, processor and monitor. ठीक है, so the correct answer is data input. Why? Because the CPU primary function is to process data and instructions which are received from the input device and then produce meaningful output. Now next question, which of the following is true about Windows? Options are operating system, founded by Bill Gates, fast, smart and safe, and all of the above. So which option is true about the Windows? So the correct answer is all of the above, because Windows are the operating system founded by Bill Gates, and Windows are fast, smart and safe as well. Now we'll move to the next question, that is LCD stands for. What is LCD? LCD होता क्या है? देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडियाज का दे देती हूँ। हमने मॉनिटर्स पढ़े होंगे पहले, मॉनिटर्स होते हैं ना। मॉनिटर क्या होता है? आपने देखा है हमारे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में जो हमें डिस्प्ले शो करता है, दैट इज अ मॉनिटर, जिसमें हम देख पाते हैं कि वट एवर वर्किंग इज गोइंग इनसाइड अ कंप्यूटर, वी आर ओनली वॉचिंग इट थ्रू द मॉनिटर। सो 3 टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं, CRT, LCD and LED. So LCD is also a monitor, LED is also a monitor. Nowadays we are using LED monitors. पहले के टाइम पे अगर हम चाहते हैं तो वहां पर CRT monitors यूज होते थे, आपने देखा होगा, जिनके बैक बहुत हैवी होते थे, बट nowadays LCD and LED monitors are used. So what is the full form of LCD? That is liquefied crystal display. नाउ CRT, देखो अभी अभी मैंने समझाया आपको CRT, तो अब फटाफट से आप सब पहचान लेंगे। CRT stands for cathode ray tube and that is also a type of monitor. Next is dot matrix, laser, inkjet. What are these? These are the type of projector, monitor, monitor तो नहीं है, मैंने भी आपको बताया। Projector, no. Printer or none of the above. Just think and guess the correct answer. कुछ कुछ guess कर रहे हैं सही। Yes, the correct answer is printer. These are the 3 types of printer. Next is ALU, जो हमने CPU वाले टॉपिक में पढ़ा था, that is a part of the CPU, ALU, and that is used for calculations. Calculation किस में होती हैं? Yes, arithmetic calculations. So ALU stands for arithmetic and logical unit. Now next is which of the following is true for a CD and DVD? इनमें से कौन सा CD और DVD के लिए ट्रू है? CD क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और वी कैन ऑल्सो से डिजिटल वीडियो डिस्क। सो इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो करेक्ट है दोनों के लिए?
They are of round shape. They can store large amount of data. They are used for storing video and audio mostly, or all of the above. वेरी गुड. द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों की ही शेप राउंड होती है, दोनों ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, दोनों ही यूज होते हैं वीडियो एंड ऑडियो मोस्टली स्टोर करने के लिए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बेसिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. बेसिक लैंग्वेज कौन सी है हमारे कंप्यूटर्स की? इज इट रैम, रोम, बाइनरी और सीपीयू? गेस करिए, फटाफट से गेस करिए. यस, द करेक्ट लैंग्वेज इज बाइनरी. बाइनरी मीन्स 0 and 1. इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में. बाइनरी लैंग्वेज को मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाऊंगी. बेसिकली अभी आप इतना जान लो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1. सो पहले क्या होता था, कंप्यूटर हमारी सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता था. डेट मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में ही सारा डेटा वो समझता था, चाहे हम उसमें अल्फाबेट्स लिख रहे हैं, चाहे हम नंबर्स दे रहे हैं. तो कंप्यूटर क्या करता था, ट्रांसलेटर्स उसको कन्वर्ट करते थे किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में. फिर कंप्यूटर उसको समझता था, फिर वो आउटपुट देता था, फिर वो आउटपुट अगेन किस लैंग्वेज में देता था? हाई लेवल लैंग्वेज में. हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज इन विच वी आर टाइपिंग, क्योंकि हम तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझ सकते थे ना, कि 0 और 1 के फॉर्म में अगर वो आपका नाम लिख के दे देगा, क्या आपको समझ में आएगा कि मेरा नाम लिखा हुआ है? लेकिन अगर आप अपना नाम टाइप करते हैं, आपको मॉनिटर के ऊपर अपना नाम टाइप किया हुआ नजर आता है, तो आप इजीली पढ़ सकते हो. अगर वो 0 1 के फॉर्म में आएगा, यू आर नॉट एबल टू रीड इट. सो डेट्स वाई बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर आंसर आउटपुट देता है, लेकिन वो हमें समझने के लिए, ताकि हमको समझ में आए, उसको वापस से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. देन ओनली वी आर एबल टू सी ऑन द मॉनिटर. सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मोस्ट पॉपुलर डेटा बैकअप डिवाइस. सबसे ज्यादा पॉपुलर बैकअप डिवाइस कौन सी है? बैकअप मीन्स अगर हमारा सिस्टम फुल हो जाता है, हमें और डेटा अपलोड करना है, और डेटा हमको डाउनलोड करना है, या और डेटा सेव करना है सिस्टम के अंदर, हमारा ड्राइव फुल हो चुका है, तो हम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें एक बैकअप तो चाहिए, डेटा भी चाहिए, ठीक है. तो हमें स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे? विल यूज USB फ्लैश ड्राइव. फ्लैश ड्राइव मीन्स द पेन ड्राइव. आप देखते होगे कुछ भी आपको बैकअप लेके जाना है, आपने अपने डेटा, अपने मॉनिटर पे कुछ बनाया, अपने कंप्यूटर में कोई वर्क किया, कोई फोटोग्राफ्स हैं, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, वट एवर यू हैव मेड, और आपको अब उसका बैकअप रखना है कि मेरे को ये अपने साथ रखना है डेटा, कि मुझे कभी भी इस डेटा की जरूरत पड़ सकती है. तो आप क्या करते हो? कौन सी डिवाइस सबसे ज्यादा यूज होती है? दैट इज अ पेन ड्राइव. दैट इज ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव. ठीक है. So now quiz, or we can say our MCQ questions has been completed. I hope this MCQ session was helpful. Don't forget to revise regularly and practice more questions. हम भी आगे अभी और क्वेश्चंस में इस तरह से आपके लिए लेके आऊंगी, वीडियोस के साथ साथ theoretically videos as well as these type of MCQs also. So thank you for watching. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना.